Good morning, all of you, students of Sambodhi Career Academy and newly joined students from across India, because there are few students who are from Goa, who are from different districts of Maharashtra, and there is one student who is from UP, Jaunpur. So I welcome all of you, new students especially. On the behalf of Sambodhi Career Academy, myself, Mangesh Naneshwar Borkar sir, director of this academy. Sambodhi Career Academy is in the field of competitive examinations, especially UPSC Civil Services exams, MPSC State Services, and rest of the subordinate exams, banking, staff selection, and all kind of central government, state government, insurance, NDA, CDSC examinations. So we have been into this field almost since 2006. Okay, unofficially from 2004 to 6, and officially from 2006 and onwards. Okay, so it's been a long time that I have been conducting so many seminars in many parts of India. Physical seminars were there, and in the period of lockdown and in the period of corona pandemic, we started online sessions. So earlier, like right from April 2020, we started conducting online sessions, and so many students of Sambodhi Career Academy, those who qualified UPSC, MPSC examinations, and the rest of the examinations, so they came online and they delivered their motivational talks. They delivered subject based information, strategy, approach of especially UPSC Civil Services examinations, MPSC examinations in front of the students from Maharashtra and India. Okay. So earlier we conducted a 3 days free session, which in which there were students from Delhi to Tamil Nadu, and it was attended by almost 150 students from across the India. Afterwards, we conducted many sessions of our officers, those who qualified from our institution, or few of my juniors, those who were to whom I guide during their interview, their UPSC Civil Services preparation. And to take a name of few, there is Kalicharan Khartade, who is IS officer of Telangana cadre, my friend. Okay, then two joint directors or the joint commissioners of income tax, Dhananjay Vanjari and Dr. Upsen Borkar, who are presently working at NADT Nagpur, National Academy for the Direct Access. Then Dr. Tushaba Shinde, to whom I guided during his preparation, during his struggle. So he is in Pune division and he is in Indian Railway Personal Services. So he delivered his session. Dr. Hemant Turpude, just I have mentioned his name. So he's a commissioner of Provident Fund, Solapur, and additionally Kolhapur region. And he is associated with Sambodhi Career Academy's mission. Okay, since 2005-6. Okay, so he today also he is joining on 1st November 2020, this first day of our 8 days UPSC Civil Services main session. So many of other students and many of other officers, Archana Pujari Patil, she is a police officer in Mumbai Police. Okay, she is a pass out student of Sambodhi Career Academy in 2006-7 batch and through MPSC. Jay Wagmare, who qualified UPSC Civil Services examination in a first attempt in 2013 batch. So he also delivered his session, and at present he is serving to Customs and Excise Department as a Deputy Commissioner level. So he also delivered session. And then many other, Shilu Chahande sir, who is an officer through MPSC and working with government of Maharashtra, he also delivered session. So Vishal Shirsagar, who is an officer at Kolhapur in charity department, he delivered session. Yusuf Sheikh, he is in Washim and district account officer of Washim, he also delivered session. So many officers in these corona pandemic situation, they delivered online sessions.
In this 8 days workshop also, you people will take a benefit of other officers who are associated with Sambodhi Career Academy. So recently, one student, he took my guidance for UPSC Civil Services interview, and he is associated with Income Tax Department. So he will, on coming Saturday, he will deliver a session on Indian Constitution with respect to UPSC mains examination. Another student who qualified UPSC Civil Services from our institution, Dr. Ramdas Bhise. So right now he is in Solapur division of Railway, Central Railway. So he also qualified in second attempt UPSC Civil Services examination. So he will next Sunday he will deliver session on ethics, which is a fourth important paper of UPSC Civil Services mains examination. There is Dr. Joseph Rodriguez, who is always associated with Sambodhi Career Academy. So he will take a few important topics of UPSC mains examination. And he is a former Indian Defense State Services officer who qualified in 2009 batch. Okay. And there is another officer, Singh sir, okay, who will possibly take lecture on tomorrow or day after tomorrow. Okay. So, and there is another faculty also, Seema. So she will also take, and other faculties are also there. So to begin with this session, for the new student especially, I would like to discuss overall introductory portion of this examination, because those students who have newly joined for this specific session, so they may not aware about UPSC syllabus and the pattern of UPSC examination, and other than that, opportunities through UPSC Civil Services examination. So these half an hour for those students who are not aware about UPSC Civil Services examination. तो ये जो आधा घंटा मैं अभी बात करने वाला हूँ, ये उन लोगों के लिए है, क्योंकि मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स जो अभी ज्वाइन हुए हैं और जो संबोधि के रेगुलर क्लासेस करते हैं, उनको इसके बारे में काफी सारे, मतलब सब कुछ उनको पता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स आप जैसे जो अभी नए ज्वाइन हुए हैं संबोधि के इस सेशन में, स्पेसिफिकली इस सेशन के लिए आप में से शायद कुछ लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो नहीं करेंगे उनके लिए ये स्पेसिफिक जो इंफॉर्मेशन है वो मैं देना चाहता हूँ यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। सो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा ऑन बोर्ड बताऊंगा कि जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है, आप सभी के सामने व्हाइट बोर्ड डिस्प्ले हो चुका है, राइट? सबको दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? सो यस सर। हाँ, सो ये जो हम जो बात कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में। ओके, थोड़ा सा पेन जरा गड़बड़ हो गया अभी। ओके, सो यूपीएससी सिविल सर्विसेज, और इसमें जो पैटर्न है वो मैं आपको बता दूं। ये जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होती है, हमारा जो टारगेट रहेगा इस सेशन का पूरे, वो हम पैटर्न देख लेंगे। सो प्रीलिम्स एग्जाम होती है यूपीएससी में, जिसमें 2 पेपर्स होते हैं, जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज 2। ओके, ये आप में से काफी लोगों को पता है। GS1 एंड GS2, इसे फेमसली सीसैट भी कहा जाता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, सो इसके 200 मार्क्स होते हैं, इसके 200 मार्क्स होते हैं, 200 मार्क्स 200 मार्क्स। और ये हर जो पेपर होता है, दिस इज फॉर 2 आवर्स एंड दिस इज फॉर 2 आवर्स। ओके, so general studies 1 and general studies 2, which is also known as civil services aptitude test, for 200 marks for 2 hours, 200 marks 2 hours, 100 questions here and 80 questions here. Okay, so यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो एक बात ध्यान में रखना, हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो यूपीएससी के सिविल सर्विसेज की पढ़ाई कर रहे हैं। वो हमारा जो भी डिस्कशन अभी होने वाला है, इट इज रिलेटेड टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसको शॉर्ट में सीएस कहेंगे, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, एंड दिस इज प्रीलिम्स। सो बेसिकली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है, भारत की सबसे डिफिकल्ट एग्जामिनेशन कही जाती है। इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया, and it is considered as the second toughest examination of the world. It comes after the
French or the France civil services examination. Okay, so it is considered as the second toughest examination of world. So इसको अगर toughest भी कहा जाए तो ऐसा नहीं है कि कोई बंदा कोई भी average student जो है वो अगर hard worker है, okay, if he is having like that mentality to take hard work, okay, for general studies 1, for this general studies 2, and then rest of the section which is in mains examination, so he can qualify this examination. अगर आप hard worker हो, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, इसमें मैटर बिल्कुल नहीं करता आप कितने इंटेलिजेंट हो. काफी सारे सो कॉल्ड इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो होते हैं, जो 10th में मेरिट रहते हैं, 12th में मेरिट रहते हैं, ओके, इवन ग्रेजुएशन में भी डिस्टिंक्शन होल्डर रहते हैं या फिर सो कॉल्ड मेरिटोरियस रहते हैं, वो स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते. लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो जिनका खुद के ऊपर विश्वास रहता है, जो मेहनत करने के लिए, हार्डवर्क करने के लिए तैयार है, और जो लोग इसको मतलब विदाउट व्हाट यू कैन से ना थके इसके ऊपर जो काम करना चाहते हैं, वो लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं. ओके, सो ये हो गया हमारा प्रीलिम्स. अब इसमें जो 100 क्वेश्चंस है और ये 80 क्वेश्चंस है, तो ये बात ध्यान में रखना कि दिस पेपर, सीसैट पेपर, इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर. ओके, इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर. सो इसमें आपको आउट ऑफ 200 मार्क्स यू नीड टू स्कोर ओनली 33% मार्क्स. तो 33% अगर मार्क्स की बात करते हैं तो 33% मतलब 66 मार्क्स जो है वो आपको इसमें लेने हैं. बट ऑलमोस्ट व्हाट हैपन, even scoring 66 marks, okay, even scoring 66 marks, that is also a difficult task. Many of the students disqualify in this examination because of this general studies second paper. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि जनरल स्टडीज 2 है, जनरल स्टडीज 2 में 66 मार्क्स लेने हैं, लेकिन फॉर योर श्योरिटी योर टारगेट शुड बी 100 प्लस. 100 के ऊपर आपको मार्क्स मिल जाएंगे तो आप कंफर्टेबल रहोगे. ठीक है, और ये जो पेपर है जनरल स्टडीज 1, ये पेपर आपका स्कोरिंग है, जितना स्कोर करोगे इसमें उतना ज्यादा अच्छा है. तो नॉर्मली क्या होता है कि आउट ऑफ 200 मार्क्स इफ यू आर स्कोरिंग 110 मार्क्स, देन एट एनी सिचुएशन यू कैन क्वालिफाई दिस यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. ठीक है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है वो आप क्वालिफाई कर सकते हो. तो अभी मैं थोड़ा सा आपको पैटर्न बता देता हूँ प्रीलिम्स में क्या क्या होता है. देखो, जो जनरल स्टडीज 1 की हम बात कर रहे हैं, जीएस 1, उसमें क्या क्या होता है, उसमें इंडियन हिस्ट्री होता है. ओके, इंडियन हिस्ट्री. सो वर्ड हिस्ट्री यहाँ पे मेंशन नहीं है, इंडियन हिस्ट्री है. ओके, इंडियन हिस्ट्री, दिस इज टी. इंडियन हिस्ट्री में क्या होता है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री. अगर मैं जनरल स्टडीज, अगर मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस की बात करूं, तो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के साथ इसमें जनरल स्टडीज में वर्ल्ड हिस्ट्री भी जुड़ जाएगा. ओके, दिस इज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु डोंट हैव हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट. ओके, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो आपको एनीवे एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री की पढ़ाई करनी है. लेकिन आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री नहीं भी है, फिर भी आपको यूपीएससी के जनरल स्टडीज के लिए, प्रीलिम्स के लिए, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं, उसमें से कम ये एंशिएंट, मेडिवल और मिडिवल से मॉडर्न से रिलेटेड 8 से लेके 18 क्वेश्चंस होते हैं. 8 से लेके आउट ऑफ 100 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें से 8 से लेके 18 क्वेश्चंस आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स में हिस्ट्री सेक्शन में होते हैं. और जब आप यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का मेंस देते हो, जनरल स्टडीज का पेपर देते हो, जिसके बारे में मैं लंच ब्रेक के बाद बात करूंगा, तो उसमें भी ये एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ करीब 250 मार्क्स में से 150 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन होता है. ठीक है, सो दिस इज हिस्ट्री सेक्शन ऑफ जनरल स्टडीज, फर्स्ट पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए इसमें. फिर काफी सारी एनालिटिकल इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए, जैसे इंदस वैली सिविलाइजेशन से लेके इंदस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, बुद्धिज्म, जैनिज्म, महाजनपदास, मौर्याज, पोस्ट मौर्याज, गुप्ताज, सल्तनत पीरियड, मुगल्स पीरियड, पोस्ट मुगल्स, then revolt of 1857, Congress establishment, and then freedom struggle movement, social religious movement, movement of the Gandhiji, and so many
other people. Okay, then independence and post-independence. So this is almost a syllabus of general that history section. Then we are having second section, that is geography. Okay, so geography में क्या होता है? Basically, we are having physical geography. Okay, physical geography. We are having social geography also. Okay, human geography. And we are having geography of India and world. Okay, India and world. So geography is basically a very conceptual subject. At the same time, map based questions are there in your geography section. Geography का जो section होता है उसमें हमें मैप के आधार पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, और फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, जैसे आपका हो गया रिवर्स हो गया, सॉइल्स हो गया, रॉक फॉर्मेशन हो गया, या फिर रिवर्स हो गया, माउंटेन रीजन्स हो गए, राइट, volcanoes, earthquake, monsoon, climate, ocean. So many questions are related to that, and even there are questions related to social and human geography. So basically, population of scheduled caste, scheduled tribes, women's, okay, then overall census, and then database questions. Okay, so that comes under this thing. And world geography, so you should aware about all the continents of the world, and you should have information about locations of different countries, and those specifically those countries which are in news, those places which are in news, so that we can locate from maps. So atlas आता है orient black swan, या फिर ऑक्सफोर्ड का एटलस आता है. ओके, सो उसमें से आप लोगों को ज्योग्राफी की प्रिपरेशन, आपकी मैप बेस्ड प्रिपरेशन अच्छे से हो सकती है. ओके, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इसमें, that is Indian Constitution. So Constitution of India is very important topic in your GS1 General Studies first paper. So with respect to Constitution of India, with respect to Constitution of India, uh, there is very important book M. Lakshmikant. So it is related to Indian Constitution. So this Indian Constitution, if you are reading M. Lakshmikant book, okay, M. Lakshmikant. So this M. Lakshmikant book, it talk about entire basic constitution of India, and this book is very important with respect to preparation of your examination. So आप M. Lakshmikant की book ले सकते हो, इंग्लिश में अवेलेबल है, उसमें आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है. लेकिन इसमें आपको एप्लीकेशन बेस काफी जो बातें हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड वो नहीं मिलती है. तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको एप्लीकेशन बेस पढ़ना है. मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली क्या होता है कि वी आर हैविंग लेजिस्लेचर, वी आर हैविंग एग्जीक्यूटिव, वी आर हैविंग जुडिशरी. ओके, सो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर में होनी चाहिए. सो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है. ओके, देन वी आर हैविंग fundamental duties, and then we are having so many other things. So there are many things in Indian Constitution, and all these things we need to study with respect to current affairs. Okay, so whatever current happenings, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे रिजर्वेशन का इशू चल रहा है, मराठा रिजर्वेशन इन महाराष्ट्र, या फिर काफी सारे जो इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन का इशू है, इकोनॉमिक रिजर्वेशन बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक बेसिस. सो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिसेंटली 10% रिजर्वेशन दिया गया. सो ऐसे जो मुद्दे हैं, या फिर देर आर so many things which are related to fundamental rights of the people, which are related to the freedom of expression. So काफी सारे ऐसी जो बातें चलते रहते हैं, राष्ट्रपति शासन, या फिर गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट, उनके राइट्स के बारे में कॉन्फ्लिक्ट, या फिर जुडिशरी के बारे में हम काफी सारे बातें सुनते रहते हैं. एट्रोसिटीज के बारे में हम काफी सारा सुनते रहते हैं, जैसे अभी हाथरस में उस बच्ची पे रेप हुआ था. ओके, सो शी बिलोंग टू अ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी. सो देयर इज अ एक्ट which is called as prevention of the atrocities on the scheduled caste and the scheduled tribes. So ऐसे जो भी काफी सारी ऐसी बातें घटती है, तो उस
उस करंट अफेयर को हमें इस भारतीय संविधान के साथ और भारतीय संविधान में जो प्रावधान है काफ़ी सारे उसके साथ कोरिलेट करना होता है क्योंकि क्वेश्चंस उसी के आधार पे आते हैं। ठीक है? सो ये कॉन्स्टिट्यूशन है। ये मैं बहुत ही मतलब मैं केवल आप लोगों को जस्ट बता रहा हूँ, एक-एक हेड्स बता रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग इंटो डिटेल क्योंकि डिटेल में बात करने के लिए हमारे पास अभी पूरा ये जो सेकंड लेक्चर से लेके पूरा जो 8 तारीख तक का जो पीरियड है सो दैट इज़ विथ अस। ओके? सो ये हो गया आपका जनरल स्टडीज 1 का ॲप्लिकेशनसाठी वर्षा फॉर ॲप्लिकेशन ॲज सच देयर इज नो बुक. यू नीड टू कोरिलेट द थिंग्स मीन्स आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो पढ़ने के बाद उसका एप्लीकेशन आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा. दैट इज नॉट रिटन इन स्पेसिफिक बुक्स that you can collect from the regular reading of newspapers. अगर आप रेगुलर रीडिंग न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो जैसे राज्यसभा लोकसभा जैसी जो टीवी चैनल्स आते हैं उसको अगर देखते हो टाइम पास वाले जो टीवी चैनल्स है अर्नब गोसावी जैसे फालतू लोगों के सो वो नहीं देखना है हम लोगों को. ठीक है? वी नीड टू सी दोज चैनल्स लाइक राज्यसभा लोकसभा टीवी और अदर रिलायबल चैनल्स. इवन यू कैन सी you can watch BBC News वगैरह. So that is somehow relevant. From that you can get important sources. Okay, application part उसमें से आपको मिल जाएगा. Anyways, so come to the topic. Then we are having economy. Okay, then we are having economy section. Okay, specific Indian economy. Indian economy is a vast topic. Again, this is current related topic. With respect to Indian economy, we are having planning. Okay, plannings in India. We are having our study of our energy sector, study of agriculture sector, okay, study of foreign like foreign investment in India, okay. Then we are having जिनको लगता है वो लोग ये इसको नोट भी कर सकते हैं. Then we are having banking, we are having different schemes of the central government of India, at the same time few schemes of the state government of India. ठीक है? सो काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है, जो सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए इम्पोर्टेंट होती है, वो सारा का सारा इकोनॉमी में आता है. फिर बजट होता है हमारा, हमारे टैक्सेशन की पॉलिसी होती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है, ओके. हमारी पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी है, पब्लिक सेक्टर जैसे फॉर एग्जांपल ओएनजीसी हो गया तो ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है, एचपीसीएल, बीपीसीएल पब्लिक सेक्टर कंपनी होगी. सो पीएसयूज बोलते हैं उसको, पब्लिक सेक्टर यूनिट. सो इसके बारे में भी आपको क्वेश्चंस आते हैं. एंड ओवरऑल इकोनॉमी इज अगेन वेरी करंट अफेयर्स टॉपिक. ओके, करंट अफेयर रिलेटेड टू करंट अफेयर्स. एट द सेम टाइम देयर आर सो मेनी कंसेप्ट्स इन Indian economy. Okay, so this is one thing. Related to this, you can refer means for your history, basic geography, basic constitution, basic economy. You can refer books NCERT, CBSC बोर्ड्स जो है तो CBSC बोर्ड्स के जो 8वीं से लेके 12वीं तक 8 स्टैंडर्ड टू 12 स्टैंडर्ड तक के जो बुक्स है एनसीईआरटी के या फिर केंद्रीय बोर्ड के सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. सो वो आप बेसिक्स के लिए रेफर कर सकते हो. ओके, बेसिक्स के लिए आप रेफर कर सकते हो. ओके, उसके बाद फिर और दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जैसे एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नाउअडेज. ओके, सो एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. बायोडाइवर्सिटी दिस टाइम देयर वेर क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी एंड अदर देन दैट देयर वेर क्वेश्चंस फॉर द एग्रीकल्चर सेक्शन ऑल्सो. सो पर्यावरण जैविक विविधता आज का सबसे बड़ा जो इशू है दैट इज पर्यावरण जैविक विविधता है. सो वी आर हैविंग so many things like we are having national parks, okay, we are having biodiversity parks like biosphere reserves, wildlife sanctuaries in India. So with respect to India we need to study. Then we are having endangered species है ना, जो जिनके लाइफ को जिनका लाइफ थ्रेट में है ऐसे पशु पक्षी. ओके, सो उनके बारे में फिर दोज हु आर लाइक वल्नरेबल एक्सटिंक्शन स्पेसीज हु आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन म्हणजे मतलब जो नामशेष मतलब जो मिटने के कगार पे है
ऐसे जो स्पेसीज है उनकी जो प्रिपरेशन है ये बायोडायवर्सिटी में की जाती है। और एनवायरनमेंट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। सो इन एनवायरनमेंट वी आर हैविंग बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट, we are having study of vegetation and then other so many things. Okay, melting of glacier वगैरह वगैरह ये सब आपके environment के इसमें आ जाता है, ठीक है। So this is very important topic in examination. You can get so many questions related to this environment also. Okay, and then we are having current affairs section. So हमारे पास current affairs एक ऐसा विषय है, current affairs is such a topic. Okay, so in current affairs, with respect to current affairs, we are having news related to constitutional development, economy, okay, whatever we studied, okay, archaeology, म्हणजे suppose historical development, then sports, personalities means ऐसी personalities जो national और world level पे important है, so personalities specifically from the literature field, okay, from the science field, from the music field, art field, uh, uh, even some people of like this thing at different designations, people with different persons with different designations. Okay, for example, secretary level diplomats, okay, or the CEO of different multinational companies. And mostly you can get questions related to women personalities, those who are working at international level and those who are at higher level of the कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशंस, ओके। सो याच्यावरती तुम्हाला इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वुमेन्स के बारे में। सो करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर को अगर अगर आपको करंट अफेयर की पढ़ाई करनी है तो रेगुलरली न्यूज़पेपर, जो एक स्टैंडर्ड इंग्लिश न्यूज़पेपर या फिर मराठी हो या फिर हिंदी हो, लेकिन कुछ भी करके आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ना है, ठीक है। सो ये करंट अफेयर्स में आप स्पोर्ट्स पढ़िए, उस जो इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स है वो पढ़िए, पर्सनालिटीज, इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल नेशनल इवेंट्स, okay, related to economy, related to constitution, related to historical development, related to geography, environment, and then other so many things, okay. So this is about your almost section. Then we are having science. So basically science is related to general science, in that application of the physics, chemistry, and application part of the biology, that is entire human system. आपको आपकी जो ह्यूमन सिस्टम है उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी चाहिए होती है। सो दिस इज अवर फर्स्ट पेपर, जनरल स्टडीज 1, जिसमें आपको काफी सारा पढ़ना है। जनरल स्टडीज 2 जो है उसमें रीजनिंग होता है, ओके, रीजनिंग होता है, वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग। जनरल स्टडीज 2 में रीजनिंग एक सेक्शन होता है, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी ऐसा भी कहा जाता है, ये एक सेक्शन होता है। देन डेटा इंटरप्रिटेशन एक सेक्शन होता है, डीआई, ओके। उसके साथ ही इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। काफी सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा है वो भी इसमें इसको नहीं कर पाते अच्छे से, ओके। सो और अदरवाइज इफ योर इंग्लिश इज गुड, डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सुपीरियर कॉम्प्लेक्स। हमें सुपीरियर कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि मेरा इंग्लिश तो अच्छा है, मैं निकल जाऊंगा। काफी सारे स्टूडेंट्स जो कॉन्वेंट से लेके पूरा का पूरा एजुकेशन जिनका इंग्लिश में हुआ है वो लोग भी इस कॉम्प्रहेंशन में फेल हो जाते हैं। सो इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डिसीजन मेकिंग, ओके, डिसीजन मेकिंग। सो these are important, these are सर important. हाँ, यस। सर आपने जो सेकेंड अभी लिखा था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बाद, वो क्या था? न्यूमेरिकल एबिलिटी। ओके, थैंक यू सर। हाँ हाँ हाँ, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी। सो ये सब कुछ हमारे सी सैट में आता है, सी सैट में, ओके, सी सैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। एंड अलॉन्ग विथ इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन देयर इज अनदर टॉपिक विच इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। सो ये जो सेकंड पेपर जो है GS2, जिसको सी सेट कहा जाता है, दिस इज क्वालिफाइंग। 200 में से आपको केवल 66 मार्क्स ही लाने हैं, ओके, 33% क्वालिफाइंग, ओके। बट योर आवर टारगेट शुड बी 100 मार्क्स, ओके, 100 प्लस होना चाहिए। और जो फर्स्ट पेपर मैंने बताया था जनरल स्टडीज 1, उसमें
हमारा टारगेट कम से कम 110 होना चाहिए। और यूपीएससी में एक बात बता देता हूँ मैं कि ये जो बेसिकली जो 200 मार्क्स होते हैं, तो इसमें से कट ऑफ जो होता है नॉर्मली, सपोज जनरल कैटेगरी है, ओपन स्टूडेंट्स, सो इनका हम ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ लीजिए कि 110। ओके, मैं ओपन का हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि 110 का आप टारगेट रखिए। और इसके बाद फिर ओबीसी, ये हम एक स्टैंडर्ड कट ऑफ पकड़ेंगे। ओके, वी आर कंसिडरिंग स्टैंडर्ड कट ऑफ। सपोज इफ ए कैंडिडेट बिलोंग टू ओबीसी, सो इसका 105 106 वगैरह पकड़ लीजिए। ओके, अगर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट है तो इसका 95 प्लस पकड़ लीजिए, अगर शेड्यूल ट्राइब है तो उसका 90 प्लस पकड़ लीजिए। ओके, दिस एज पर माय कंसिडरेशन। एक्चुअली कट ऑफ इज वैरिंग। लास्ट ईयर ओपन का कट ऑफ कितना था? 98 था। ओबीसी का कट ऑफ कितना था? 96 था। शेड्यूल कास्ट का कट ऑफ था 82 और शेड्यूल ट्राइब का कट ऑफ आई थिंक 80 या फिर उससे थोड़ा सा कम था। ओके, ट्राइब्स का। सो बेसिकली इफ यू सी दिस कट ऑफ, सो दिस आई एम कंसिडरिंग एज अ स्टैंडर्ड कट ऑफ। ये इसको मैं स्टैंडर्ड कट ऑफ कंसिडर करता हूँ। और आप किसी भी कैटेगरी के हो, ओके, डजेंट मैटर कि यू बिलोंग टू ओबीसी, एससी और एसटी, ओके, और ओपन, you should have target of 110। okay, 110, इवन उससे ज्यादा भी अगर आपका स्कोर होता है तो अच्छी बात है। आपका अगर कट ऑफ आपने 110 क्रॉस कर लिया तो आपको कोई भी यूपीएससी की प्रीलिम्स क्वालिफाई होने से नहीं रोक सकता। क्या होता है, काफी काफी बार क्या होता है ना कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर हैविंग this they aim to qualify cut off of their respective category only। okay, so this approach is not good। okay, ये जो approach है कि हमारे कैटेगरी में हमारा कट ऑफ क्वालिफाई होना चाहिए, so this is not good approach। if you belong to any category, so keep in mind your target should be 110 and this is not very difficult। देखो, प्रैक्टिकली ऐसा है कि एक साल यूपीएससी की प्रिपरेशन जो फुल टाइम करते हैं, उनको एक साल ये यूपीएससी की प्रिपरेशन करते करते ही जाता है। करने में, समझने में ही हमारा एक साल जाता है। उसमें भी आपने अगर कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन की है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर रिवीजन के साथ, अच्छे स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के, नोट्स पढ़ के, और एक प्रीलिम्स के पहले अगर आपकी 5-6 बार अगर प्रॉपरली रिवीजन हुई है, तो आप इजीली इस एग्जाम की प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन एक साल ये समझ लेना कि इफ यू आर अ फुल टाइमर, अगर आप एक साल फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब मोस्टली काफी सारे स्टूडेंट्स अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, मेरे यहाँ पे भी अभी काफी सारे स्टूडेंट्स है कि दे हैव ज्वाइन फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। सो जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो जो हमारा चलता है ग्रेजुएशन के दरमियान, सो उसी दरमियान आप कंफर्टेबली इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, तो उसमें आपको काफी ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। लेकिन जिनका अभी ग्रेजुएशन हो चुका है या जो थर्ड ईयर में है, सो स्पेसिफिकली दोज हु आर ग्रेजुएट, सो उनको फुल टाइम इसकी प्रिपरेशन करना है। और फुल टाइम प्रिपरेशन करते करते उनका एक साल तो इसमें केवल अच्छी समझ आने में जाएगा। ओके, ओके, इट विल टेक 1 ईयर। और एक साल आपको रिजल्ट देने में, मतलब एक अटेम्प्ट होने के बाद आपका दूसरे अटेम्प्ट में पॉसिबली रिजल्ट आ सकता है। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एक्सपेरिमेंटल अटेम्प्ट, you can prepare, okay, full fledged, and you can give your attempt for the selection in first attempt or the maximum in the second attempt। so anyway, this is about overall introduction about the prelims examination। अभी हम थोड़ा सा जो मैं नए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और उसके बाद फिर हमारा मेंस है। इसके बाद फिर हमारा मेंस एग्जाम जो रहेगा, तो मेंस के बारे में हम काफी सारी डिटेल में डिस्कशन करने वाले ही है। सो मेंस एग्जामिनेशन में ये बात ध्यान में रखना कि फॉर with respect to your UPSC mains examination is totally written। okay, mains examination is totally written। ये रिटर्न होती है और इसमें टोटल 9 पेपर्स होते हैं। ठीक है, 9 पेपर्स आर देयर इन मेंस एग्जामिनेशन। इन 9 पेपर्स में जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो जनरल स्टडीज 1, 2, 3, 4 के बारे में, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे ऐसे के बारे में, और फिर इंग्लिश के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और फिर जो एक लैंग्वेज का रीजनल पेपर होता है, जिनका लैंग्वेज मराठी है मराठी, उनके लिए मराठी, जिनका गुजराती है गुजराती, जिनका हिंदी है हिंदी। सो एक लैंग्वेज का पेपर होता है। सो बेसिकली इंग्लिश पेपर एंड लैंग्वेज पेपर,
दीज आर क्वालिफाइंग पेपर। ऐसे पेपर 250 मार्क्स का होता है, जिसमें 2 ऐसे होते हैं 125 मार्क्स के। और जनरल स्टडीज के जो हर पेपर जो है, ईच पेपर ऑफ जनरल स्टडीज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सो ईच पेपर कॉन्स्टिट्यूट्स 250 मार्क्स। सो 250 इंटू 4 मतलब 1000 मार्क्स के आपके जनरल स्टडीज के हो गए 4 पेपर्स। ऐसे हो गया आपका 250। और फिर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में हम लोग इस वर्कशॉप में बात नहीं करने वाले हैं एज सच। ओके, 9 पेपर्स के बारे में 9 पेपर में से हम 7 पेपर्स के बारे में मैं आपको बता दूंगा। जिनको ऑप्शनल का स्पेशल ओरिएंटेशन या गाइडेंस चाहिए है, उसके लिए हम अलग से वर्कशॉप रखेंगे बाद में। ओके, सो ऑप्शनल पेपर जो होता है, उसके एक सब्जेक्ट होता है, उसमें से हमें उसके 2 पेपर्स होते हैं 250 मार्क्स के। तो ये टोटल जो एग्जामिनेशन जो है ना, ये 1750 मार्क्स की है। मतलब जनरल स्टडीज के 4000 मार्क्स, ऐसे के 250 मार्क्स 1250, और 250 250 ऑप्शनल सब्जेक्ट के। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल सपोज आपका पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है, फिजिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिलोसॉफी है, तो उसका एक पेपर रहेगा, वो सब्जेक्ट रहेगा। एंड सब्जेक्ट इज हैविंग 2 पेपर्स, सो एक पेपर ये और एक पेपर दूसरा। टोटल 1750 आपके मेंस के मार्क्स हो गए। और 275 जो है वो आपका इंटरव्यू का रहेगा, इंटरव्यू। और ये रहेगा आपका 2025। 2025 में से अगर किसी भी स्टूडेंट को 1000 मार्क्स अगर मिलते हैं, ओके, सो यू आर इन लिस्ट, यू आर इन लिस्ट। अभी उससे भी नीचे कट ऑफ जा रहा है, अभी उससे भी नीचे कट ऑफ जा रहा है। ओके, मतलब जो ओपन का जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट 950 पे वगैरह आ रहा है अभी। सो उस और मतलब अगर लास्ट स्टूडेंट जो है ओपन कैटेगरी का, अगर उसको 950 मार्क्स है, सो ही क्वालिफाइड दैट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और फिर उसका जो रैंक रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही विल गेट सम पोजीशन थ्रू यूपीएससी। अगर ओबीसी कैंडिडेट है, जैसे अभी मेरा एक स्टूडेंट था, ही बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी, दिस टाइम ही अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू, ऑलरेडी ही इज अ सिलेक्टेड कैंडिडेट, लेकिन उसका जो था समथिंग 905 मार्क्स कुछ आया उसका, and he missed his selection by 20 marks. Okay, there is another candidate who also appeared this time for interview, and he also missed his rank only by 10 to 12 marks. Okay, but possibly he will get selected in the reserved list. एक रिजर्व लिस्ट होती है। एक हमारा अभी इंस्टीट्यूशन का स्टूडेंट था, जो दोनों के जो एक तो ऑलरेडी पोस्ट होल्डर है, और दूसरा दूसरा जो है वो यूपीएससी थ्रू पोस्ट होल्डर नहीं है। सो उसका केवल 8 या 10 मार्क्स है, उसका जो ये है रैंकिंग जो है, तो वो गया। सो बेसिकली वो आ जाएगा शायद लिस्ट में, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का एक प्रोविजन होता है, उसमें शायद वो आ जाएगा। सो ये बात ध्यान में रखना कि यूपीएससी का जो मेंस है दैट इज टोटली रिटन, और रिटन की प्रैक्टिस जो है वो हमें तब तक नहीं होती जब तक हमारा एक अथॉरिटी सारे जितने भी सेक्शंस मैंने बताया, जैसे पॉलिटी बताया मैंने, जैसे हिस्ट्री बताया, ओके, जैसे ज्योग्राफी बताया है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, एनवायरनमेंट है, साइंस है, ये जितने भी सेक्शंस है, उनके ऊपर जब तक आपकी एक अच्छी अथॉरिटी नहीं है, तब तक आपको लिखना कैसे है, किस तरह से लिखना है, ये समझ में नहीं आता। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू मेंस एग्जामिनेशन। मेंस के बाद इंटरव्यू के बारे में भी मैंने बात की आपसे। अभी मैं आप लोगों को, जो नए स्टूडेंट्स हैं, उनको केवल जो सर्विसेज है उसके बारे में बता देता हूँ। एंड देन हेमंत त्रिपुरी सर इज ज्वाइनिंग शॉर्टली। ओके, तो वो फिर आपको थोड़ा सा मोटिवेशनल पार्ट आपसे शेयर करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया, समजलंय तुम्हाला जे काही आतापर्यंत Yes. सांगितलं। नवीन ज्यांनी एनरोल केलेलं आहे, जो लोग नए एनरोल हुए हैं, उन लोगों को समझ में आया? Yes, sir. यस सर। यस अभी सर। अभी अभी हम लोग थोड़ा सा ये देख लेंगे कि क्या पोजीशंस होती है। सो फिर आपको आपका एक जो डाउट है पूरा तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, सो ये जो है सर्विसेज है। दिस इज अ चार्ट ऑफ, दिस इज अ पेज फॉर सर्विसेज। तो इसमें देखो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, काफी सारे स्टूडेंट जो रहते हैं, सो उनको इतना ही पता रहता है, या फिर मेनी ऑफ द पीपल दे नो दैट कि देयर इज आईएएस।
ओके, सो IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अगर आप माइक म्यूट करो, किसी का माइक चालू है म्यूट करो। सो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS, then we have Indian Foreign Service IFS, okay, just a minute. हाँ, IFS. So Hemant, you have joined, I think, right? Dr. Varsha. हाँ हाँ, हेमंत सर आप ज्वाइन हो गए? हेलो, हेलो हेमंत। Okay, anyway, so he's in room. Okay, so this is Indian Administrative Service, then second is Indian Foreign Service. If you want to go for foreign, okay, हाँ, so if you are going if you want to serve our country on the foreign soil, so you can join foreign service. If you are a dashing personality, right, आपको अगर कुछ करना है, डैशिंग यूनिफॉर्म सर्विस के बारे में एक क्रेज है आपके दिमाग में, सो आप पुलिस सर्विस में ज्वाइन हो सकते हो। ओके, फिर इंडियन पोस्टल एंड अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस है, देन इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस है, रेवेन्यू सर्विस है, रेवेन्यू में कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज, देन रेवेन्यू में दूसरी भी एक सर्विस होती है जिसको इनकम टैक्स कहते हैं, देन डिफेंस अकाउंट सर्विस है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस है, पोस्टल सर्विस है, सिविल अकाउंट है, रेलवे ट्रैफिक सर्विस है, ओके, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर, okay, in railway protection force, so that is called as Indian Railway Protection Force. Then Indian Defense Estate Service is there, Indian Information Service is there, Indian Trade Service, Corporate Law, Armed Forces Headquarters, Civil Services, then Delhi Andaman Nicobar Island, Dadra and Lakshadweep, Dadra Nagar Haveli, Daman and Diu, okay, this Haveli Civil Service, likewise for this Delhi, Andaman Nicobar Island Police Service, then Pondicherry Civil Service and Pondicherry Police Services. Okay, so ये सारी सर्विसेज हो गई, तो ऑलमोस्ट ये जो 24 सर्विसेज है, इसके ऊपर आपका जो सिलेक्शन होता है, that selection is because of your rank, all India rank. Okay, that selection is because of your all India rank and as per your categories. Okay, so आपका अगर आपका सपोज 100, डॉक्टर हेमंत वेलकम, आवाज येतोय? थँक यू मंगेश. प्लीज कंटिन्यू. हा जस्ट नाही झाला, आता संपेलच, इट्स फिनिशिंग, एव्हरीथिंग इन डिटेल, इन शॉर्ट मध्ये मी दिलेला आहे. ओके, so all these means many of the students, they don't know ki how they how these UPSC allocate them these services. So जिन लोगों को ये पता नहीं है कि सर्विसेज का अलोकेशन कैसा होता है, उनके लिए बता देता हूँ कि जब आपका सपोज आपके 1000 सीट्स रहेंगे, 1000 सीट्स में केवल 1000 स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट होंगे फाइनली, क्योंकि अगर 1000 सीट्स है तो उसके लिए कम से कम 8-10 लाख स्टूडेंट्स भारत में अपीयर होते हैं। जो 8 से 9 लाख 10 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, उसमें से 90% स्टूडेंट्स नॉन सीरियस होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। कंपटीशन केवल दिखने के लिए बहुत ज्यादा होती है, एक्चुअल में कंपटीशन वैसे नहीं होती। ओके, क्योंकि टाइम पास करने वाले तो उसमें 50% होते हैं, फिर हाफ हार्टेड प्रिपरेशन करने वाले उसमें से 50% होते हैं, फिर इधर उधर कोचिंग करने वाले भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन उसमें भी काफी सारे सिंसियर नहीं होते हैं। अगर आप दिल्ली जाओगे, पुणे जाओगे, या फिर इवन मेनी प्लेसेस, दोज प्लेसेस व्हिच इमर्ज एज अ सेंटर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, कोचिंग सेंटर्स। मेरे यहाँ पे आज की डेट में मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में दिल्ली के स्टूडेंट्स है, बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूशन है दिल्ली की, एक वहाँ के स्टूडेंट्स मेरे पास है। एक तो स्टूडेंट मेरा अभी
अभी उसने 2 साल दिल्ली में था, फिर 2 साल मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में था. Now he qualify UPSC prelims examination first time. Okay. And there are so many students recently joined my mentorship program. So there are almost 20 to 30, 20, 25 students are there in my mentorship program. So they already completed their at least 2 years coaching in Mumbai, in Pune, in this one, Delhi. Okay. So ये बात ध्यान में रखो कि केवल फॉर्म भरने से या केवल कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने से आप लोग ये क्वालिफाई नहीं होते हो. आपको प्रिपरेशन का एक अलग जो पैटर्न है, अलग एक ओरिएंटेशन है, स्ट्रेटेजी है, उसमें आपको खुद को इन्वॉल्व करना होता है. दैट इज इम्पोर्टेंट. सो इसमें वही लोग प्रीलिम्स में क्वालिफाई होंगे जिन्होंने एक सफिशिएंट लेवल की प्रिपरेशन अच्छे से की है और एक सैचुरेटेड मतलब जिसको हम बोलते हैं कि सैचुरेशन पॉइंट आना चाहिए आपकी प्रिपरेशन का, तब आप क्वालिफाई होते हो. तो आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, प्रीलिम्स में से फिर 15 मल्टीपल मतलब जितने सीट्स थी 1000 सीट्स है तो 12 to 15 मल्टीपल टू दैट 1000. सो 12,000 से 15,000 तक के स्टूडेंट्स मेंस को अपीयर होते हैं और फिर मेंस में से केवल इंटरव्यू के लिए एक सीट के लिए 2.5 से 3 स्टूडेंट्स मतलब फॉर इफ सीट्स आर 1000 सो उसमें से 2,500 से लेके 3,000 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया जाता है. इंटरव्यू आपका दिल्ली में होता है, ओके, यूपीएससी हाउस में. और फिर फाइनली इंटरव्यू के बाद 1000 जो स्टूडेंट्स होते हैं या अगर सीट्स अगर मान लो कि ज्यादा होगी 1000 के बदले उस समय अगर गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो अगर 1050 हो गई तो 1050 का सिलेक्शन होगा, 950 होगी तो 950 का सिलेक्शन होगा. ओके. तो नॉर्मली इस तरह से भी होते रहता है. सो दिस इज सिलेक्शन प्रोसेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑल इंडिया रैंकिंग और आपकी कैटेगरी उसके हिसाब से आपको सर्विसेज अलोकेट होती है. अभी एक नया सिस्टम निकला है जिसके बारे में काफी सारे स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं है. जोनल सिस्टम आई है जिसमें यूपीएससी हमारे टाइम पे जब हम डॉक्टर हेमंत और मैं जब हम लोग यूपीएससी के प्रिपरेशन में थे, कंपटीशन में थे, सो दैट टाइम हमें कैडर बेस मतलब हमें स्टेट को चूज करना था. पहला स्टेट कौन सा महाराष्ट्र है, जैसे आईएएस और आईपीएस के लिए स्पेसिफिकली कैडर बेस के लिए, बाकी तो सेंट्रल सर्विसेज रहती है. सो अभी क्या हुआ है कि जोन्स आए हैं, 5 जोन्स है. उसमें सपोज आप अगर महाराष्ट्र के हो तो महाराष्ट्र का 3rd जोन है और फिर उस 3rd जोन में महाराष्ट्र के साथ गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है. तो वो एक अलग सिस्टम है जिसके बारे में काफी लोगों को अवेयरनेस नहीं है. उसके बारे में मैं आपको आराम से बताऊंगा जोनल सिस्टम के बारे में. सो एनीवे दिस इज ऑल अबाउट यूपीएससी पोजीशंस, मतलब क्या आपको अपॉर्चुनिटीज है. सेकेंडली मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स क्या होता है और फिर मेंस जो है, तो मेंस के बारे में तो ये हमारा सेशन ही रहने वाला है. तो हम अभी डॉक्टर हेमंत सर का सेशन होने के बाद हमारा जब लंच ब्रेक होगा तो 1 से 3 मेरा जनरल स्टडीज फर्स्ट, ओके, जीएस फर्स्ट, यूपीएससी का जो मेंस का जीएस फर्स्ट है उसके बारे में मेरा डिस्कशन रहेगा. और फिर कल से लेके 8 तारीख तक का शेड्यूल आपको ऑलरेडी दिया गया है. ओके. सो आई फिनिश माय सेशन हियर ओनली. ऑलरेडी time is running. So I welcome Dr. Hemant on the behalf of Sambodhi Career Academy. Okay, just a minute. And any question, any doubt related to this session? कुणाला कोई doubt है? Any question? जो नए स्टूडेंट है बेसिकली बाकी तो मेरे काफी सारे जो ऑलरेडी ज्वाइन है संबोधि के कोर्सेज में वो स्टूडेंट्स है. So any question, new student, those who registered for this session? Sir, I have a doubt. हाँ, yes, बोलो. Sir, which newspaper should we read? You can read any standard newspaper, Times of India, The Indian Express, The Hindu, any. Okay. हाँ. अच्छा. So the question is raised by now काय तुझं Tanvi. Question is raised by Tanvi, and for all of you, I want to share few things about Tanvi. Dr. Hemant, are you there? Yeah. Dr. Hemant, Tanvi is basically just in 9th standard. Oh.
Okay. So basically, it's good, Tanvi, that you have joined once again, and I appreciate your this dedication towards civil services examination that you have started at a very young age. Okay. Chalo, anyway, so I am moving towards next session.